Now the question is, why did CBC introduce this analytical paragraph again? You can say reintroduce for the session, and only in the class 10. So my question to you, can you explain why it is included in our syllabus? Any one of you? I would like to interact with everyone. I don't want to be only active speaker. No, I want to active listener also. So please define why. According to हम सभी से चाहूँगा अपना आइडिया हुआ मिस्टर आप why it is introduced in our syllabus? You can sit there. We see the efficiency of the student in the field of analytics, so that we can see any subject in a group, right? Like that, we are there, so there is a system. As that might be an analytical sprint also, where we assess by the student. Very good. Thank you. Yes, sir. Please. Can you define? Yes, yes. I didn't hear the question. Just tell me what is the importance of analytical paragraph for the session of this for the students? Why seriously? Why she has introduced this topic? Develop the analytical skill of the students. Particularly in the English literature as well as in the other literature also. So your opinion? So हमको तो ये कुछ होगा Your opinion? whatever the creativity or other things the student has, it must be really elaborated or described in a very better way. बोल सकते हैं basic thing is that the whole world is now dealing with the problems, and there are the problems galore all round of the life, and so the attention of the growing generation is to prepare them, if not to find the full solution of the problem, at least make them ready to suffer, pass and tolerate those very problems. And this is because the world is the basis of the world lies in our mind. How we look at as a literature student, you might have studied expressionism and impressionism. Impressionism was that you are teaching with an intention, but how I take that very teaching of yours, it is my impression of it. And how I express a thing may not be the same as others have expressed it. So the analytical symptom to be developed in the mind of the student is necessary today to prepare our generation, growing generation, who tomorrow have to willingly or unwillingly take the world on their responsibility. Yes, they have to analyze the बहुत world. सारी जिम्मेदारियां थी जिससे मैं बचपन में भागता रहता था, आज भी भागना चाहता हूँ लेकिन भागने नहीं देता, है ना? So unless I have a good mind, I have an analytical approach. Basic fundamental thing is logic. I must have a logic of the things, whether tolerating it. वो कहते हैं ना, while at home you as a Romans you either you change the role or either follow the rule. This is the reason why analysis. Now I would like to from the madam side. Yes, ma'am. Understanding the matter of comparison. Yes, ma'am. Thank you. I can think that like LSRW, so listening, speaking, reading and writing. In reading section also I think that many factual passages are there. So it is also very important for the students to read
garbage calculation, garbage calculation, or any information about any fact, then how can they express the things in their own words? The motto of education is to know whether students are going in that direction or any other direction. Very good, very good. Excellent, sir. Thank you. So it concludes like this. That analytical paragraph. Please have a seat. introduced for basically ACC. Now what is the ACC? A means to analyze, to acquire the knowledge of analyzing any data. Number two, compare. To compare what they studied. And next, comprehend, to understand, and conclude overall. So the steps the CBC wants to introduce is that they have to take care why they have introduced. These four things are there. Now Recording अभी understand. पूरा कंटिन्यू The करेंगे। purpose. The question would require the students to comprehend whatever the knowledge, whatever the data, whatever the presentation there is. Number two, after going through the data, they can analyze the thing. Number three, they can compare the thing. And finally, they conclude the thing. Now, question is that, how can we make the student to analyze those things? First of all, देखिए मैं आपके यहाँ पढ़ाने नहीं हूँ, मैं ये बात पूछना जानना चाहता हूँ कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। We are not here to teach, we are just here to share our experience. तो बच्चों को सबसे पहले उनके क्लास में कहिए कि आप एनालाइज कीजिए कि जैसे 45 स्टूडेंट हैं, तो कौन सा बच्चा क्या करता है, किस सब्जेक्ट में इसका ज़्यादा रुचि है, उसको एनालाइज कीजिए। आप इस तरह से उसको जो है एक्टिव, है ना? You must give them a task. So they can comprehend, analyze, compare, and conclude. And in this format, you have to make them understand how to utilize their comprehensive knowledge. And collectively used to write in the, but all these things only possible if they realize the importance of the analytical theory. Otherwise, it is not interesting. Because if they are not interested, for the last 2 hours or 3 hours when they think it was very good lecture, because he was saying the same thing what we are facing. वो वही बता रहे थे जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग रोज जाने खेल रहे हैं। और मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि रहकर खामोश खुद को सजा देता हूँ और बेहद गुस्से में मुस्कुरा देता हूँ। यही सबसे बड़ा फंडा है मेरा पढ़ाने का, कि बेहद गुस्से में मुस्कुरा देते हैं लेकिन खामोश रहकर खुद को ही सजा देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम हेल्पलेस। आप कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति में सीखने की ललक न हो, आप उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। ए स्टूडेंट, इफ he is not willing to learn anything, you cannot make him learn. You cannot force him to learn, because learning is like a well. कुएं की तरह होता है, जहाँ मिट्टी की परत होती है, पानी अपने आप आ जाती है, उसमें पानी मौजूद है। वो टैंकी नहीं है कि आप भर दिए उसमें। So these 4 items are there to take care of that. Next, what is analytical paragraph? Let us discuss about this thing. What is an analytical paragraph? So an analytical paragraph is a form of description. I don't think that I have to read all the things. You can read that. Analytical skill of students by providing them with a hypothetical chart, graph, table, data. It requires an in-depth comprehensive analysis of the given data. And CBSE introduced the concept of analytical passage in writing section so as to enhance the analytical reasoning skill of the student. Analytical reasoning skill of the students. And the motive to write analytical paragraph is to analyze and explain a text or data or then describe it in simple and clear language. Analytical writing would be lucid and tasteful. And what are the most important? These are the key characteristics for an analytical paragraph. These points should be taken care of. Number 1, whatever data is given, you have to write in brief, around 120 to 150 words. That is a hypothetical situation. It should be precise and well directed. Whenever the student is going to write, उनको कहिए कि आप उसको लिखेंगे कैसे,
ये एक पॉलिसी है कि should be precise and well directed, clear and crisp language should be implemented. The entire paragraph should be written using a single tense. So you cannot, आप जैसे ही शुरू करता है बच्चा कंका देते हैं उनका टेंस क्या है उसका पता ही नहीं चलता. He went today और I gone today लिखा जाता है. इस बात को याद रखिए कि उसका टेंस जो है नॉलेज होना चाहिए. अदरवाइज तो एक बार कम से कम उनको बताना पड़ेगा कि आप जब लिख रहे हैं तो सेंटेंस यूज कीजिए. नेक्स्ट, द पर्सनल ओपिनियन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पैराग्राफ. एकमात्र पैराग्राफ में जहाँ बच्चों से कहा जाता है कि यू शुड नॉट बी एबल टू इम्प्लाई योर ओन थ्योरी बिकॉज डाटा इज गिवन एंड द ग्राफ इज गिवन. इसके बाहर आप कोई भी टॉपिक नहीं कर सकते. हाँ, अगर उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टॉपिक लिख करते हैं तो वहाँ लिखा जाता है कि इफ एनीथिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द आंसर बट इट इज लॉजिकल टू द आंसर यू मस्ट बी अवॉइड. It should be clearly portray the state and facts. जो भी फैक्ट्स, जो भी पैराग्राफ दिए हैं, जो भी चार्ट दिए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से उनको फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना है. The use of the first person pronoun should be omitted. Generally, ग्राफ में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का हम नहीं कर सकते हैं because it never becomes single person. किसी एक व्यक्ति का अपना नहीं होता. Now, the types of analytical paragraph. Number 1, data oriented. Here the class 10 student will be required to carefully comprehend and analyze the information that is presented in the form of graphs, pie chart or table. And the student should do the comparative analysis and draw a conclusion from it. तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है. दूसरा है the math oriented. Here two maths, दो मैथ्स दिए जाएंगे. Consider differences and will be provided, and one has to meticulously analyze the variations and finally summarize them in the form of a paragraph. मैप का आधार पे कर सकता है, पाई चार्ट के आधार पे कर सकता है. Next, the problem oriented. The data should be, the problem would be repeated as student and would require to think and suggest some solution based on some logic built by the data. Process डिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड. कई बार प्रोसेस डिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है, उसके हिसाब से हमको देखना. अगेन दिस हैज टू कैलकुलेट एनालाइज द इन्फॉर्मेशन एंड समराइज इन द फॉर्म ऑफ पैसेज. लास्ट वन, द इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड. दिस रिवॉल्व्स अराउंड द कॉम्प्रिहेंडिंग एंड प्रोसेसिंग द प्रोवाइडेड information that is presented as input and eventually describing it in the form of paragraph. Information जो रहेगा उसके आधार पर उसको जो है consider करके compare करके उसको describe करना. So till now we know that why the analytical paragraph has been used, reintroduced, what are the types of analytical paragraph and what is analytical paragraph. Now the next फॉर्मेट लिखेंगे कैसे. तो 3 पार्ट होते हैं इसमें, इंट्रोडक्शन, स्टेम या बॉडी एंड कंक्लूजन. नंबर 1, द कंटेंट शुड बी वेल समराइज्ड एंड शुड कंप्राइज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. द होल पैराग्राफ शुड बी रिटन इन ए प्रॉपर फॉर्मेट. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट? फर्स्ट ऑफ ऑल there must be some introduction regarding that particular chart or data that has been provided in the question. Without that it would be incomplete. So introduction there must be. I will give you some handy phrases for the introduction. और introduction भी ऐसा होना चाहिए कि this should be well directed and explain briefly the principal content that is highlighted in the paragraph or table. It should be more than 2 or 3 lines, not more than that. Next, the body part. In the body part, it focuses on the key areas of the information, data that is given in the question asked by CBSE. It clearly portrays significance of the graph, and the following requirements should be covered as a part of the body. जब आप एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में बताएंगे तो बच्चों को ये सारे पॉइंट भी जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपको जो है उनको एक आइडिया देगा एक प्रॉपर वे में लिखने का. तो बॉडी पार्ट में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट आर द मोर मेन कंटेंट दैट शुड बी देयर, इट शुड बी वेल प्रेजेंटेड. तो जब भी डेटा लिखा जा रहा है उसको एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए वेल प्रेजेंटेड.
कैन डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ ब्रेकिंग द बॉडी। हाँ, आप तो चाहे तो 2-3 पैराग्राफ में तोड़ सकते हैं सब पैराग्राफ में। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। बच्चों को बताइए कि आपको ज़्यादा हाइपोथेटिकल या बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल और छोटे सेंटेंस यूज करके इसको लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द ग्राफ डायग्राम इन डिटेल, लेकिन हाँ, डायग्राम और जो डिटेल जो दिया हुआ है उसको पूरे डिटेल में आपको लिखना है। हाईलाइट द कंपैरिजंस एंड वेरिएशन ऑब्जर्व्ड यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपने जो दोनों को एग्जॉस्ट ऑब्जर्व किया है उसके आधार पर हाईलाइट जरूर करना है। कहीं जैसे उसमें देखते हैं कंपैरिजन 2 साल का कंपैरिजन है, दोनों साल का कंपैरिजन जरूर मेंशन करना है। इफ मेंशनिंग नंबर्स एंड फिगर देयर एक्यूरेसी मस्ट बी इंश्योर्ड। अगर बच्चे पैराग्राफ में कोई फिगर्स या नंबर्स या डेटा इनपुट कर रहे हैं तो उनकी एक्यूरेसी वो चार्ट से मिलनी चाहिए। एंड द सेंटेंसेस शुड बी रेशनली फ्रेम्ड एंड कनेक्टेड। और जो सेंटेंस स्टार्टिंग हुआ अंतर इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक उसमें एक रिलेशन होना चाहिए, एक कोहेरेंसी होना चाहिए। 1 2 3 4 इस तरह से, ऐसा नहीं कि 3 7 9 इस तरह से लिखा जाएगा। दैट इज शुड बी टेकन केयर ऑफ। नाउ द कंक्लूजन, आफ्टर दैट they must have a conclusion, because without conclusion you cannot read the paragraph। आप एक बार एक इसकी है एनालिटिकल पैराग्राफ की सबसे बड़ी बात है कि इसमें कंक्लूजन होना जरूरी है, because conclusion the paragraph should not be completed। आप किसी भी तरह से मार्किंग करने में दिक्कत होगी, आप मस्ट नंबर कर सकते हैं क्योंकि कंक्लूजन मस्ट है। तो माने किसी भी डेटा के पैराग्राफ का कंक्लूजन उसका अपना आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि सोसाइटी को मोरल होना चाहिए, है ना, लेकिन इसमें कंक्लूजन कंपल्सरी है तो देना। व्हाट इज इट? इट शुड कवर द एंटायर समरी ऑफ द गिवन चार्ट ऑफ डायग्राम। दिस इज द क्लोजिंग पैराग्राफ, सो शुड बी कंक्लूडिंग इन नेचर। बिल्कुल सही ढंग से करना चाहिए। नाउ हाउ टू राइट an analytic paragraph? The perfect way of writing an analytic paragraph in the English translation is to primarily select the key information, organize it systematically, state facts accurately, and well summarize the paragraph. Keep the following points in mind for scoring them. Carefully analyzing the provided information. Try to comprehend the literal and surface meaning of the data given. The facts in the data should be accurate. Follow a sequential logical pattern while writing the content. Use simple and lucid language, again this one, to depict the comparison, variation and withdraw the conclusion. Implement functional language. फंक्शनल लैंग्वेज तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, उसी लैंग्वेज में लिखे तो उसके ज़्यादा बेटर होगा। Now, do proofread to avoid any grammatical structural errors and present the factual information on the best possible manner. Try to cover every little piece of information that is provided by the charts, diagrams and paragraphs etc. मुझे लगता है कि आपको इधर समझाने की जरूरत नहीं है, आप इधर डिस्कस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि टाइम करेंगे, इसको इमीडिएट करके चलना है। Now let us take some examples of practice. But before that, we must take some handy phrases. अगर आपके पास ये handy phrases अवेलेबल रहेंगे तो बच्चों को देने में मदद करेंगे। ये आपके एलिमेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? डिस्क्राइब द पैराग्राफ, इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द ट्रेंड, एक्सप्लेन व्हाट द पैराग्राफ शोज एंड आउटलाइन ओवर द ट्रेंड्स और पैटर्न। ये चंद फ्रेजेस हैं जिसको बच्चा यूज कर सकता है स्टार्टिंग लाइन के तौर पे, इंट्रोडक्शन के तौर पे। जैसे कि द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, इसके बाद अपना वो लिख सकता है किस टॉपिक में दिया है। द टेबल सजेस्ट भी स्टार्ट कर सकता है। द डेटा गिवन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिगर क्लियरली शोज, द लाइन ग्राफ शोज, या द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, या द बार ग्राफ्स इलस्ट्रेट। इसके जगह पूरी किया जा सकता है। बॉडी पार्ट में अगर क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो इलेबोरेट द ट्रेंड्स इन द डिटेल। दोनों ग्राफ करने के बाद जो ट्रेंड्स है उसको इलेबोरेट करना है। इलस्ट्रेट द ट्रेंड्स इन द डेटा फ्रॉम द ग्राफ, पिक्स अप सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट, कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट द डाटा। और इसके लिए हैंडी फ्रेजेस, तो हैंडी फ्रेजेस जो बच्चों को पहले से आप बता सकते हैं कि इस किस्म का सेंटेंस आप लोग यूज कर सकते हैं ताकि उसको यूज में मदद मिले। जैसे कि
देयर हैज बीन ए ग्रेजुअल इंक्रीज, अगर वो देख रहा है तो आपको देखकर कोई ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है। ए पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन कैन बी सी। इनके बाद हम कौन से ग्राफ में किया गया है, कौन से लेवल किया उसका हम पूरा कर सकते हैं। देयर इज स्ट्राइकिंग इंक्रीज इन, अगर आप देख रहे हैं कि ग्राफ में बच्चा यूज कर सकता है, स्ट्राइकिंग इंक्रीज हुआ है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वो ग्राफ क्या है, यूज ऑफ इंटरनेट तो अर्लियर 90 और 22 दोनों में देख लीजिए क्या है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, उसको यूज कर सकते हैं। रिच देखो, द नंबर ऑफ लाइकली टू स्टडी ग्रो आफ्टर, द नंबर ऑफ रेट ऑफ, ये सारे हैंडी फ्रेजेस है। द रेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय विल डिक्लाइन, ये सारे हैंडी फ्रेजेस है फॉर द डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स, हैंडी फ्रेजेस फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटी। जैसे देखिए 1/3 ऑफ द फोर्थ, अगर कोई नंबर फिगर नहीं यूज है, द ट्वाइस एज मच, ऑलमोस्ट इक्वल, द हाईएस्ट, द लोएस्ट, द नियरली, अप्रॉक्सीमेटली, क्लोज टू, ये सारे हैंडी फ्रेजेस बच्चे को अगर पहले से दे दिए जाएंगे तो उन लोगों को लिखने में बहुत मदद मिलेगी। उन लोगों को क्या होगा कि पहले से थोड़ा सा वर्ड पावर मौजूद रहेगा तो उसको यूज करके उसको और भी कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन बिकॉज ऑल द आंसर्स आर देयर। They don't have to make they don't have to answer. उसको सीखने की जरूरत नहीं है। इवन नोटिस से भी इजी है। नोटिस में भी उनको सोचना पड़ता है कि क्या लिखना है, लेकिन वहाँ तो ग्राफ में ऑलरेडी दोनों चीज मौजूद है, आंसर मौजूद है, बस उसको अरेंज करना है, एनालाइज करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, कंक्लूड करके उसको लिख देना है, उसके आंसर वहाँ मौजूद, बस उसमें हैंडी फ्रेज दिए जाते हैं ताकि वो उसको रिलाइज करके लिख सके। हो जाता है that's why we believe that ये सारे फ्रेजेस उनको अगर पहले से देखे जाएंगे तो यूटिलाइज कर सकेंगे अपने हिसाब से। एनी फ्रेजेस फॉर द नेक्स्ट देखिए आपको दिस में लीड टू, कंक्लूजन के तौर पे जब आते हैं लास्ट में तो उसको हम यूज कर सकते हैं। दिस में लीड टू, इट में कॉज देयर इज अ प्रॉब्लम स्किमिंग एंड इट कैन गिव ए राइज टू, ये सारे जो है फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं लिखने के लिए। आपको तो है ना हैंडी फ्रेजेस फॉर द कंक्लूजन। ओवरऑल इट शोज, जैसे दोनों का लास्ट में पैराग्राफ लिखा है तो ओवरऑल व्हाट सीक्स टू सर्च करते हैं। सबसीक्वेंटली है इन ए नटसेल, द लास्ट में हमने लिखा है इन ए नटसेल वी कैन कंक्लूड दैट, है ना, फॉर द concluding in nature, Yes, yes. these words will show that. हाँ, ये सारे जो है आपको कंक्लूजन के लिए एक इम्पोर्टेंट लगेगा, क्या ये सब करेंगे। नाउ लेट अस डू सम प्रैक्टिस। तो लेट अस डू एग्जांपल। 4 एग्जांपल हैं, कोई एक एग्जांपल बनाता है जो आपको क्लियरली विजिबल हो। ये ज़्यादा विजिबल है, ये ज़्यादा इजी है। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी 10 मिनट के अंदर एक आइडियोलॉजी याद हो जाएगा, या देखते डायरेक्ट हो सकते हैं। आप अपने दिमाग में खाता बना लीजिए। जैसे हमने बताया एक छोटा सा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। So what is the question? Below the graph given showing birth and death rates in the country from 91 to 2120. 2101. Now write an analytical paragraph 100 degree. अब यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से राइज हुआ है या जो है डिक्लाइन हुआ है, उसके आधार पर ऐसा है कि भोजन पाठ पर प्रथम व्यक्ति हम लोग लिखने भी चाहिए। हाँ लिखिए ना हो। 5-10 मिनट अच्छा एक चीज बताइए, पैराग्राफ में तो यही सिंगल पैराग्राफ लिखना पड़ता है ना, एक ही पैराग्राफ में तो सब रहेगा ना, पैराग्राफ चेंज होगा नहीं। जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, आप बॉडी में आप सब पैराग्राफ यूज कर सकते हैं बेसिकली। मतलब ये पैराग्राफ उसके हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, आप उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। आप उसको सब पैराग्राफ में बांटा जा सकता है। अलग इंफॉर्मेशन
क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि राइट एनालिटिकल, इसका एनालिसिस ही हो सकता है, कोई और इसमें जो है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। बेसिकली तो हम लोग समझ रहे हैं, बच्चे तो नहीं हम लोग। दूसरा चीज़ जो है ना, बच्चे भी समझेगा। दूसरा चीज़ ये है ना, इसका क्वेश्चन आंसर होना था ना, एक्सप्लेन द गिवन ये ग्राफ एनालिटिकली, तब उसमें मोर देन वन पैराग्राफ होगा। जब एक पैराग्राफ दे दिया तो तीनों बातें एक ही पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। तीनों पर वन पैराग्राफ ही होता है, वन पैराग्राफ का ग्राफ एक्सप्लेन। Okay, thank you guys. Thank you once again for patient hearing. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने ज़्यादा बोल नहीं किया होगा।